So now we are continuing with the test of significance. So what is one-tailed and two-tailed test? In any test, the critical region is represented by a portion of the area under the probability curve of the sampling distribution of the statistics. So they are talking about the critical region, right? So what is the critical region? A region corresponding to a statistics P in the sample spaces which amounts to rejection of H naught is termed as critical region of rejection. जितना एरिया हमने प्रोबेबिलिटी मतलब एरिया अंडर कर्व, राइट, जितना एरिया हमने H naught को रिजेक्ट करने के लिए चूज किया, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल रीजन, राइट. W is the critical region and Ft is the value of the statistics based on a random sample of size, and then probability T belongs to W under H naught is equal to alpha. W का कौन है? क्रिटिकल रीजन है. T क्या है? स्टेटिस्टिक है. अगर हमारा स्टेटिस्टिक्स क्रिटिकल रीजन में आ रहा है, H नॉट का मतलब है अंडर नल हाइपोथेसिस, तो उस एरिया, उस प्रोबेबिलिटी या उस रीजन की प्रोबेबिलिटी या एरिया कितना है? अल्फा है. देखिए क्या मतलब है इसका. क्रिटिकल रीजन, the critical region, it is called region of rejection. किसको रिजेक्ट करने का ये रीजन है? Of null hypothesis H naught, of null hypothesis H naught. ठीक है. अब सिंपल से भी बात करूं मैं, इन्होंने क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी T belongs to W under H naught is equal to R. अब सपोज करो हमारा ये इस एरिया का नाम क्या है? W. ठीक है जी, ये क्रिटिकल रीजन है और इस एरिया की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अल्फा. अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल रीजन or region of rejection of null hypothesis, right? So ये हम पहले ही एडवांस में इसको सेट कर लेते हैं. सपोज करो ये कितनी है? 0.05, दैट इज 5%. सो अगर आप सपोज करो ये आपके पास 2 डायमेंशनल स्पेस है, इसमें से आपने इसको डिवाइड कर लिया, ये आपका क्रिटिकल रीजन है. दिस इज योर क्रिटिकल. ये तो मैं नॉर्मल कर्व की बात कर रही हूँ ना, उसके अंडर आपको बता रही हूँ. ये इन जनरल है. T बिलोंग्स टू W. ठीक है जी. T जो है ये स्टैटिस्टिक्स इसके अंडर आ रहा है, तो इस एरिया की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अल्फा, राइट. और इसके उल्टा जिसमें T नहीं आ रहा है उस एरिया की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 माइनस अल्फा. इसका मतलब T बिलोंग्स टू W कॉम्प्लीमेंट. ये W है और ये क्या है? W कॉम्प्लीमेंट अंडर H नॉट. इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस अल्फा. अगर ये 5% है तो ये कितना हुआ? 95%, दैट इज 0.95. ठीक है जी. उसके बाद आगे आगे क्या लिखा है उन्होंने? सो प्रोबेबिलिटी टाइप 1 टाइप 2 एरर अभी मैं नहीं बताऊंगी आपको. एरर्स नहीं अभी हम पढ़ेंगे. एरर्स हम इन द लास्ट यूनिट वी विल डिस्कस. So where W complement, the complementary set of a W is called the acceptance region. So we have W union W complement is equal to the whole spaces and their intersection. With the W intersection here is W complement, not W, is equal to 5. So probability alpha that the random value of a statistics T belongs to the critical region is known as the level of significance. जो हमारा statistic value क्रिटिकल रीजन में आ जाती है, ठीक है, उस एरिया की प्रोबेबिलिटी का नाम है अल्फा और उसको कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. क्या कहते हैं? लेवल ऑफ significance. In other words, level of significance is the size of type 1 error. So we will discuss it in the next unit in detail, or it is called the maximum producer's risk. Then I will explain in the next chapter. Abhi just we will
take it as a level of significance. The level of significance usually employed in testing of hypotheses are 5% and 1%. हमने क्या लेके चलना है इसको? 5% and 1%. So the level of significance is always fixed in advance before collecting the sample information. देखो जब भी आपने सैंपल कलेक्ट करना है बेटा, वहां पे कोई ना कोई एरर का चांस रहता है. तो वो जो एक एरर है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज नथिंग बट एन एरर. तो ये जो एरर है, इस एरर को हम मान के चलेंगे, ये हमारा फिक्स्ड है, अभी इतनी पॉसिबिलिटी है, इतना एरर आ सकता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज चूज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन एडवांस. Now, on the basis of the level of significance, on the basis of the critical region, then we will define one-tailed and two-tailed test. In any test, the critical region is represented by a portion of the area under the probability curve of the sampling distribution of the test statistic. Right? अब यहाँ पे अगर मैं test statistic मेरे पास x बार है जिसके ऊपर मैं टेस्ट लगा रही हूँ. ठीक है, then a test of any statistical hypothesis where the alternative hypothesis is one-tailed, right-tailed or left-tailed is called a one-tailed test. For example, a test of testing the mean of a population h0 mu is equal to mu naught against the alternative hypothesis h1 mu1 greater than mu naught. This is a right-tailed. अगर मैं ये वाला लेती हूँ तो this is the left-tailed. This is a single-tailed test. In the right-tailed test, H1 is the critical region lies entirely in the right tail of the distribution of X bar. Or while the left-tailed test, it lies entirely in the left tail of the distribution, right? A test of statistical hypothesis where the alternative hypothesis is two-tailed. यहाँ पे possibility हमने क्या ली? Mu is not equal to mu naught. Against the alternative hypothesis, this इसमें दो पॉसिबिलिटी आ गई. तो इसमें जो दो टेल हैं, इट मींस यहाँ पे हमें दो क्रिटिकल रीजन मिलेंगे, इज कॉल्ड द टू टेल टेस्ट. And in such a case, the critical region is given by the portion of the area lying on both tails of the probability curve of the test statistics. अब इसका एग्जाम्पल देखिए कहाँ पे है, कैसे इसको प्रेजेंट करना है. ये देखिए, ये है फिगर ऑफ टू टेल टेस्ट. ठीक है जी, इसमें दो हमारे क्रिटिकल रीजन आए, राइट. प्रोबेबिलिटी अल्फा दोनों में डिवाइड हो गई, अल्फा बाय 2 एंड अल्फा बाय 2. राइट टेल में सारी प्रोबेबिलिटी जो है वो राइट कर्व की तरफ है, और लेफ्ट टेल में सारी प्रोबेबिलिटी लेफ्ट टेल की तरफ है, राइट. सो अब मैं इसको डिफाइन करती हूँ. टू टेल टेस्ट. टू टेल टेस्ट में आप एक्स नॉट हमेशा आपका आएगा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अंडर H1. ऑल्टरनेटिव में आप लोगे म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू. इट इम्प्लाइज इसमें दोनों है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और म्यू इज लेस देन म्यू, राइट. अब इसको पिक्चराइज कैसे करेंगे? इसमें दो क्रिटिकल रीजन आएंगे आपके पास. यहाँ पे जो पोजीशन है ये z इज इक्वल टू 0 है, ये म्यू इज इक्वल टू 0 की पोजीशन नहीं है, राइट. दिस इज z अल्फा, दिस इज माइनस z. probability z greater than z alpha, probability z less than minus z alpha. ठीक है जी. This is alpha by 2, this is alpha by 2, this is equal to alpha by 2, this is equal to alpha by 2. टोटल ये जो दोनों को मिला के प्रोबेबिलिटी बनती है अल्फा, और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये 1 माइनस अल्फा. दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस रीजन, right, and this is the region of rejection. This is also called region of rejection. So two tail test में हमारे पास दो region of rejection हैं, ठीक है. जब ये सारा z एक्सिस है और ये f of z है ये वाली लाइन, तो जब प्रोबेबिलिटी
ये सारा z है, यानी यहाँ पे कौन से पॉइंट्स पड़े हैं, यहाँ पे सारे z पॉइंट्स पड़े हैं, ठीक है। जब z अल्फा से ज्यादा हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, α/2। जब z से माइनस z अल्फा से छोटा हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, α/2। जब आप इन दोनों को यूनियन कर देंगे, this is equal to α/2 plus α/2 is equal to alpha. So here alpha is the level of significance or alpha is the probability of the region of rejection. Under सो इस केस में आपकी दो वैल्यूज हैं, ये कौन सी वैल्यू है, दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू, दिस इज द क्रिटिकल, और कल भी बताया था मैंने आपको, दिस इज द टेबुलेटेड वैल्यू, सेम दिस इज द उसी में क्रिटिकल वैल्यू एंड टेबुलेटेड वैल्यू, और इसका एक और नाम है सिग्निफिकेंट वैल्यू। क्या नाम है इसका, ये नहीं, ये तो वैल्यू दे रहा है, ये वाला ये टेबल वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है। सो वट आवर क्वेश्चंस वी हैव गिवन, सपोज we have just we want to check whether the mu is 50, तो अल्टरनेटिव आप हमेशा सेट करेंगे mu is not equal to 50। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि mu की वैल्यू 50 से ज्यादा है, चेक करिए, तो आपका h0 हमेशा होगा mu is equal to 50, और अल्टरनेटिव क्या होगा इसमें, mu is greater than 50, तो ये आपका राइट टेल टेस्ट बन जाएगा, राइट। इस केस में ये कौन सा टेस्ट है, दिस इज अ two-tailed test. So right, so this is all about today's lecture.